Assalamu alaikum. My name is Dr. Hamda Saqib, and today we'll be discussing lecture number 5 of Biochemistry and Genetics 2. Today's topic will comprise of metabolism of lipids, the digestion and absorption of lipids. This is the review of the previous lecture. Today's lecture's outline includes the introduction to lipids, the classification and function of lipids, the dietary lipids, organs involved in lipid digestion, various enzymes acting in lipid products, hormonal control, lipid malabsorption, and disorders of lipid metabolism. I want to be very clear at this point that you should take your interest in the lectures, because if you're not taking interest, it doesn't affect me, it will affect you. So if you have any queries, you can ask me in the mails, and you should take the lecture with interest and do some research on your basis as well and make notes out of it, because biochemistry is something that cannot be spoon fed to you. It is something that you have to learn, understand, practice, and make notes of it. So this is something that I can tell you, but you have to play your own part as well in doing so. And then I'm doing on my very level best to make the lectures very easy and understandable, because biochemistry is a bit of a tricky subject, but once you get your interest in it, it is very easy to remember. And once we'll surpass 10 to 12 lectures, we'll have a mock exam as well. So the introduction: lipids are a heterogeneous class of naturally occurring organic substances, have a distinguished functional group or structural features. They are insoluble in water and highly soluble in one or more of the following solvents, such as ether, chloroform, benzene, and acetone, and are widely distributed in the biological world. आपको पता ही है, वाटर और ऑयल कभी भी आपस में मिक्स नहीं हो सकते. कभी भी आप पानी में तेल मिलाएं तो ऊपर तेल जो है तैरता रहता है, लेकिन अगर कभी किसी शर्ट पे पेट्रोल का दाग लगे तो उसको ऑयल्स की मदद से ही या डिटर्जेंट की मदद से ही आप हटा सकते हो, वाटर की मदद से नहीं हटा सकते. दीज आर सम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दैट आई गिव यू फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. So the healthy high-fat foods include avocados, olives, sunflower seeds, coconut oil, salmon, and so on. So these are the fat-containing foods which are very good for your body. But some fat-containing foods are those which are not good for your body and can cause harm, such as ribs contain a large amount of saturated fats in the form of triacylglycerol, and these can result in obesity, heart diseases, and diabetes. Adipose tissue is the primary triacylglycerol storage depot in animals' fats and an excellent form of redox energy. तो जो आपके अंदर जिसे कहते हैं ना, एडिपोज टिश्यू को आम जुबान में आप चर्बी कहते हो, जो वाइट कलर की आपको अक्सर जब आपने गोट्स में भी देखी होगी. सो दैट थिंग इज़ नोन एज द एडिपोज टिश्यू. और आपका जो ट्राइसाइलग्लिसरॉल या TAG जो टाइप होती है लिपिड्स की, वो उस फॉर्म में स्टोर होती है आपकी बॉडी में. Stored fat comes from conversion of carbohydrates into fatty acids in liver. That is why कहा जाता है कि मीठी चीज़ें, इंटेंस कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें, वो कार्बोहाइड्रेट्स जो सिंपल होते हैं उनसे अवॉइड करना चाहिए उन लोगों को जो ओबेसिटी फेस करते हैं, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स को आपका लिवर फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है, और वो फैटी एसिड्स इन द फॉर्म ऑफ ट्राइसाइलग्लिसरॉल आपके एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है, और इस तरह आपका वेट बढ़ता रहता है. So the function of lipids includes the storage of energy, reduce compounds, lots of available energy. तो जितना आप में एडिपोज टिश्यू होता है उतना आपके अंदर स्टोर्ड एनर्जी मौजूद होती है. हाइड्रोफोबिक नेचर है, सो दे गिव अ गुड पैकिंग. गुड पैकिंग से मुराद ये है कि उनकी आपस में बॉन्डिंग और पैकिंग अच्छी होती है एडिपोज टिश्यू की. इंसुलेशन फ्रॉम इन्वायरमेंट, लो थर्मल कंडक्टिविटी, हाई हीट कैपेसिटी, दैट इज़ दे कैन एब्जॉर्ब हीट, एंड मैकेनिकल प्रोटेक्शन, कैन एब्जॉर्ब शॉक्स. तो आपकी जो इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर एक चीज़ होती है मजेंट्री. आपकी जो मजेंट्री होती है वो आपके इंटेस्टाइन को प्रॉपर प्लेस में रखती है. दैट इज़ वाई आपके जो इंटेस्टाइन्स होते हैं उनके आपस में उलझन नहीं बनती, मतलब कि वो आपस में जिसे कहते हैं नॉट्स नहीं बनते, क्यों? उनके अंदर एक मेजेंट्री होती है. और मेजेंट्री एक मैकेनिकल प्रोटेक्शन के तौर पे भी काम करता है. आपकी मेजेंट्री में बहुत ज़्यादा एडिपोज टिश्यू होता है. सो आपकी बॉडी में जो जितने भी फैट्स हैं, ज़रूरी नहीं कि वो इन द फॉर्म ऑफ ओबेसिटी हो, लेकिन आपकी बॉडी में और भी जगहों पे नॉर्मल फैट्स मौजूद है. उनका काम यही होता है मैकेनिकल प्रोटेक्शन देना, और जिसे कहते हैं हीट कैपेसिटी जो उनकी हाई होती है, मतलब को
आपकी वो वाले बॉडी के पार्ट्स ज़्यादा हीट बर्दाश्त कर सकते हैं। वाटर रिपेलेंट नेचर होता है लिपिड्स का। हाइड्रोफोबिक नेचर कीप्स द सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म ड्राई। इट प्रिवेंट्स एक्सेसिव वेटिंग and prevents the loss of water via evaporation, and it maintains the structure of cell membranes. More functions of lipids include cofactors for enzymes. जो आपके फैट सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं उनके अंदर भी फैटी एसिड्स का कंपोनेंट होता है, दैट इज़ वाई वो फैट सॉल्युबल होते हैं। तो विटामिन के आपके ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन में बहुत अहम किरदार अदा करता है। सिमिलरली कोएंजाइम क्यू इज इन्वॉल्व इन एटीपी सिंथेसिस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सच एज पैराक्राइन हार्मोन्स, एज यू नो पिछले लेक्चर में बताया, जो कि लोकली एक्ट करता है। पैराक्राइन का मुराद है वो चीज़ जो कि लोकली एक्ट करे। सो आपके लिपिड्स पैराक्राइन फंक्शंस भी करते हैं, स्टीरॉयड हार्मोन्स के तौर पे भी काम करते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स के तौर पे भी काम करते हैं। विटामिन ए और डी भी आपके जिसे कहते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। एंड एंटीऑक्सीडेंट्स इंक्लूड विटामिन ई विच इज़ ऑल्सो फैट सॉल्युबल। आपके विटामिन जो हैं ए, डी, ई और के, memorize these are the vitamins which are fat soluble, while on the other hand vitamin B and C, these are water soluble in vitamins. Classification of lipids includes simple lipids. अब फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल, जब एक केमिकल रिएक्शन होता है स्टेरिफिकेशन, जब इनमें ये केमिकल रिएक्शन होगा तो वो क्या बनाएंगे, ट्राइसाइलग्लिसरॉल। तो फैटी एसिड्स जब ग्लिसरॉल्स के साथ मिलेंगे वाया द केमिकल रिएक्शन नोन एज एस्टेरिफिकेशन, सो दीज रिजल्ट इन ट्राइसाइलग्लिसरॉल्स और फैट्स। ऑयल्स आर फैट्स विच आर इन लिक्विड स्टेट। सीधी बात है, अगर वही फैट ऑयल वाली लिक्विड स्टेट में है तो उसको ऑयल का नाम दे दें। तो जो वेजिटेबल ऑयल आपके किचन में पड़ा होता है वो भी फैट ही होती है, लेकिन उसको ऑयल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में है। सिमिलरली वैक्सेस क्या होती हैं, अगर फैटी एसिड्स इंस्टेड ऑफ ग्लिसरॉल हाई मोलेकुलर वेट मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ केमिकल रिएक्शन करके एस्टर्स बनाए तो इन एस्टर्स को आप वैक्सेस कहते हो। सो सिंपल लिपिड्स में दो चीज़ें आती हैं, फैट्स एंड वैक्सेस। फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल जो एस्टर बनाएगा उसको आप फैट कहोगे, और फैटी एसिड और हाई मोलेकुलर वेट मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स जो एस्टर्स बनाएंगे उनको आप वैक्सेस कहते हो। कम्प्लेक्स लिपिड्स क्या चीज़ होती है, सिंपल लिपिड्स में दो कंपोनेंट होंगे, एक अल्कोहल होगा और एक फैटी एसिड होगा। पिछली स्लाइड की अगर बात करें तो उसके अंदर फैट में जो अल्कोहल है वो ग्लिसरॉल है, वैक्सेस में जो अल्कोहल है वो हाई मोलेकुलर वेट अल्कोहल है। दोनों में एक कॉमन चीज़ है फैटी एसिड और दोनों में ही एक कॉमन चीज़ है अल्कोहल, वो टाइप कोई भी हो सकती है, वैक्स की भी और फैट की भी। सो कॉम्प्लेक्स लिपिड्स में इन एडिशन टू फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल दे आर अदर ग्रुप्स, दैट इज़ वाई उनको आप कॉम्प्लेक्स कहते हो। और ये वाली एग्जांपल तो हम लेक्चर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं जब हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ी थी, तो हम एक क्विक रिविजन करेंगे इस पर। फॉस्फोलिपिड्स कौन से लिपिड्स होते हैं जिनके अंदर फैटी एसिड भी होगा और अल्कोहल भी होगा। फैटी एसिड और अल्कोहल का होना बहुत ज़रूरी है अगर आप लिपिड को समझ रहे हो। तो लिपिड में फैटी एसिड और एक अल्कोहल ज़रूर होगा। चूँकि फॉस्फोलिपिड एक कॉम्प्लेक्स लिपिड है तो उसमें एक एक्स्ट्रा ग्रुप होता है जिसको फॉस्फेट ग्रुप भी कहते हैं या उसको फॉस्फोरिक एसिड रेजिड्यू भी कहते हैं, दैट इज़ वाई इट हैज़ द नेम फॉस्फोलिपिड। नाम में ही मतलब छुपा है। लिपिड से मुराद है इसमें फैटी एसिड और अल्कोहल का कंपोनेंट है, और फॉस्फो से मुराद है इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप है। एंड दे फ्रीक्वेंटली हैव नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस एज वेल। तो एग्जाम्पल तो आपको अच्छी तरह याद है फॉस्फोलिपिड्स की कौन सी दो थी, एक था ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स और एक था स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स। तो अल्कोहल जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में होता है वो ग्लिसरोल होता है, और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स में जो अल्कोहल होता है वो स्फिंगोसिन होता है। तो ये तो एग्जाम्पल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 2 में। तो फॉस्फोलिपिड्स की दो टाइप्स कौन सी हैं, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स एंड स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स। जो बैकबोन होती है, जो अल्कोहल होता है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में वो ग्लिसरॉल होता है, और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स में जो बैकबोन या अल्कोहल होता है वो होता है स्फिंगोसिन। फिर दूसरी एग्जाम्पल जो कॉम्प्लेक्स लिपिड्स की है वो है ग्लाइकोलिपिड्स, जिसको ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स भी कहते हैं। ये टाइप भी हम पढ़ चुके हैं सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स की जब हमने बात की। तो इसके अंदर क्या है चीज़ है,
जब आप स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स में एक शुगर ऐड कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स। तो चीज़ वही है, स्फिंगोसिन है, फैटी एसिड है। स्फिंगोसिन इज़ अ टाइप ऑफ एन अल्कोहल। सो फैटी एसिड और स्फिंगोसिन ने क्या किया, एक लिपिड बना दिया, और उसमें जब एक्स्ट्रा चीज़ आपने कार्बोहाइड्रेट ऐड कर दी तो वो क्या बन गया, ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड। एंड अदर कॉम्प्लेक्स लिपिड्स इंक्लूड सल्फोलिपिड्स, aminolipids and lipoproteins. And there are certain precursor and derived lipids which include, मतलब कि इन चीज़ों से आप बनाते हो लिपिड्स, which include fatty acids, glycerol, steroids, fatty aldehydes, ketone bodies, hydrocarbons and lipid soluble vitamins and hormones. ये precursors भी हैं और ये derived lipids भी हैं। precursors पहले दो हैं, ऑब्वियसली फैटी एसिड और ग्लिसरॉल आपके प्रिकर्सर होते हैं, आपके पेरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपके लिपिड्स बनाता है। तो पहले दो आपके प्रिकर्सर्स हैं और बाकी जो हैं वो आपके डिराइव्ड लिपिड्स हैं, जिनमें स्टीरॉयड आते हैं, फैटी एल्डिहाइड्स आती हैं, लिपिड सॉल्युबल विटामिन्स आते हैं एंड सो ऑन। सो टाइप्स ऑफ लिपिड्स इस फ्लो चार्ट में आप याद कर लें, और ये क्वेश्चन आपको, ये फ्लो चार्ट बनाने का आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है। तो अगर सिंपल लिपिड है जिसके अंदर सिंपल ग्लिसरॉल है और फैटी एसिड है, तो वो क्या होता है, वो सिंपल लिपिड होता है और उसका दूसरा नाम क्या होता है, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। फिर कॉम्प्लेक्स लिपिड्स की बात करें जिनको मेम्ब्रेन में भी मौजूद होते हैं, तो उनमें फॉस्फोलिपिड्स आते हैं और ग्लाइकोलिपिड्स आते हैं। फॉस्फोलिपिड्स की दो एग्जांपल्स हैं जो बारहा हम हज़ार दफ़ा पढ़ चुके हैं, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स एंड स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में जो बैकबोन आपको पिंक कलर की नज़र आ रही है वो है ग्लिसरॉल, जबकि स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स में जो बैकबोन है वो क्या है, स्फिंगोसिन। बाकी इन दोनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है कि इन दोनों में ही फॉस्फेट ग्रुप है, इन दोनों में ही फैटी एसिड है, लेकिन फ़र्क क्या है कि स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स में स्फिंगोसिन है और ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में ग्लिसरॉल है। और दूसरी टाइप कॉम्प्लेक्स लिपिड्स की है ग्लाइकोलिपिड्स, जिसमें ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स आते हैं। अगर हम स्फिंगोलिपिड वाले स्ट्रक्चर में एक कार्बोहाइड्रेट ऐड कर दें तो वो क्या बन जाएगा, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड। सो इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर, और जितनी दफ़ा एक बात रिपीट होती है उतना आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी इनकलकेट हो जाती है। स्टोरेज लिपिड्स कौन से होते हैं, फैट्स एंड ऑयल्स आर यूनिवर्सली यूज्ड एज stored form of energy by living organism. So very important MCQ comes over here. 1 ग्राम फैट में कितने कैलोरीज होती हैं, तो 9 किलो कैलोरीज होती हैं 1 ग्राम फैट में। तो यहाँ पे आपका होम टास्क आ गया, 1 ग्राम प्रोटीन में कितने किलो कैलोरीज हैं और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितने किलो कैलोरीज हैं, तो इसको आपने रिसर्च करें इस पर। एंड फैट्स एंड ऑयल्स आर हाईली रिड्यूस्ड कंपाउंड डेरिवेटिव्स ऑफ फैटी एसिड्स। तो ऑब्वियसली फैटी एसिड्स जब आपके ग्लिसरॉल के साथ एस्टेरिफिकेशन करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, फैट्स एंड ऑयल्स। फैटी एसिड्स आर हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स विच आर लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स कंटेनिंग अप टू 24 कार्बन एटम्स। तो ये फैटी एसिड्स की अभी खाली बात कर रहा है कि फैटी एसिड्स खुद क्या होते हैं। फैटी एसिड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स होते हैं जिनमें लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स होती हैं जिनमें अप टू 24 कार्बन एटम्स होते हैं। तो एक फैटी एसिड में 24 कार्बन एटम्स तक मौजूद हो सकते हैं। द मोस्ट कॉमन फैटी एसिड्स, याद रखिए हम फैटी एसिड्स की बात कर रहे हैं, हम फैट्स की बात नहीं कर रहे। जब फैट्स और ग्लिसरॉल एस्टेरिफिकेशन करेगा तो वो फैटी एसिड फैट्स बनाएगा। फैटी एसिड जब अल्कोहल के साथ एस्टेरिफिकेशन करेगा तो वो फैट्स बनाएगा। अभी हम खाली फैटी एसिड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कि प्रिकर्सर है लिपिड का। तो सो द मोस्ट कॉमन फैटी एसिड्स प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इवन नंबर्ड, C16 एंड C18। C16 को आप पामेटेट भी कहते हो और C18 को आप स्टीयरेट कहते हो। सो वेरी इंपॉर्टेंट, आप MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से रखो कि C16 वाले फैटी एसिड का नाम क्या होता है और C18 वाले फैटी एसिड का नाम क्या होता है, तो रिस्पेक्टिवली नाम बताए हैं। C16 इज पामेटेट एंड C18 इज अ स्टीयरेट। फैटी एसिड्स आर एलिपैथिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स which include saturated and unsaturated. Saturated में एक कार्बन
बॉन्ड होता है और अनसैचुरेटेड में डबल